Okay, good morning all. Saran, आवाज येतोय clearly? Yes, sir. Thank you. Okay. Okay. I guess you can see my screen, right? Yes. Okay. Thank you. Okay. So from today onwards, we are going to see the database testing. Okay. Okay. सर एक क्वेश्चन था। बोलो. सर हम पोस्टमैन टूल में ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं क्या एपीआई का? नहीं, automation नहीं. It's a manual tool only. To do the automation, we required number of what we can say jar files and all. So it is not possible in Postman. Okay. So Postman is purely for manual testing of API. Okay. We cannot perform the automation. Okay. इट्स ओके। Yeah. So we are going to start the database. Okay. Now, what do you understand by the word database testing? आपको क्या एक फर्स्ट गेस आता है if you think about database testing? Yes. Storage. Storage. Okay. Okay. Storage again. Manipulation operation of databases. Okay. Very good. Again. Checking database capacity means how much load it can take. Okay. Okay. Checking the schemas of database, Okay. views and cursors. Okay. Okay. Chalo. We'll start from scratch. Okay. Like you don't know about database. Okay. No issue. Now, see the database. This like terms we are getting nowadays, है ना? सबसे पहले जैसे जब भी आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था दैट टाइम लाइक देयर वर आल्सो डेटा बिकॉज अगर इफ देयर इज अ सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे डेटा भी होगा. So how this data will be used to store in these days or previously? Okay, so they were using the FMS. Okay, that is file management system. Okay, so what is this file management system? So previously हमारे पास जो भी डेटा होता होगा, okay, that data we are used to save in different like word files, okay, or we can say in notepad, okay, or in like different excels, right? Like we are using to save our data in terms of like our in local files. जो भी अपना local system होगा उसमें हम जैसे कि कोई image होगा और in terms of images और in terms of like word file और ppt notepad जो भी हो उससे हम store कर देते हैं. Okay, now it is okay to store the data in the local system because it's very easy. आज भी अगर हमको कुछ सेव करना है डेटा, so what we will do, simply we will make an word file, excel file, notepad जो भी होगा and that we will try to save in our local system. Okay, but as time progresses तो होगा क्या कि इस डेटा को आप स्टैटिक मान लोगे, right? Static means we cannot manipulate that data again with different person until and unless there are some sources like email, WhatsApp, that is a different source. बट अगर लार्ज डेटा को अगर आपको हैंडल करना है तो नाउ दीज टर्म्स लाइक वर्ड, नोटपैड, एक्सेल, इसका सिग्निफिकेंस कम हो जाता है. ओके, इफ यू सिंपल अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर सर्फिंग एनी डेटा, ओके, ऑन गूगल क्रोम एंड बाय वन क्लिक लाइक देयर इज अ नंबर ऑफ डेटा इज जनरेटेड. ओके, आप जो भी क्लिक करते हो वहां से आपका
लाइक पर्सनल चॉइस क्या है, अदरवाइज विच टाइप ऑफ डेटा यू आर गेटिंग, है ना, रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, शेयर मार्केट, जो भी डेटा आप फेच करते हो ना, वो डेटा की चॉइस कहीं तो सेव होती है अगेन डेटाबेस में, है ना। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सम सजेशंस फ्रॉम नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स, है ना, कि अगर हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो हमको देखिए और शॉपिंग का कुछ क्या आएगा, सजेशन आएगा। सो दैट मीन्स कि नाउ डेज फॉर अ सिंगल क्लिक देयर इज नंबर ऑफ डेटा जनरेटेड, है ना, इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस, इन टर्म्स ऑफ परचेस, जो भी होगा। Okay, whatever we are doing exactly, we are getting like some data from the system, और system से भी कुछ, अपने system से भी data कुछ जाता है ना। if like we have a plan of like 1 GB per day, so 1 GB मतलब only surfing में भी आप देखोगे तो data आपका consume होता है, right। now to handle this large data, right, now this FMS is not sufficient, है ना। लोकल में हम बस फाइल सेव करके उसका यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स बिकम्स अ स्टैटिक डेटा, बस वो है जहाँ पे वहीं पे रहेगा, उसको हम वापस यूज नहीं कर सकते प्रॉपरली। ओके, देन द कंसेप्ट ऑफ DBMS comes into the picture, that is what, database, sorry, database management system। अब यहाँ पे क्या हुआ, they are trying to save the data in terms of some like meaningful data। okay, for example, word में भी आप number of data save कर सकते हो। for example, for every customer, its address, its customer ID, है ना, उसका मोबाइल नंबर, जितने भी fields आपको पता होंगे या details, that we can save in the word। but imagine if we can save that in terms of Excel file। okay, Excel file, so that will be easy, like in terms of table, simply Excel file में क्या करते हैं हम, we will create the tables, right, and through that tables we can save the data, right। so अब Excel file का significance क्या होता है, over the words, Excel और Notepad, जहाँ पे एक relatively छोटी फाइल होगी, but where we talk about the large Excel file, तो बताइए इसका बेनिफिट क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्सेल और सिंपली टेबल्स। डेटा सिस्टमैटिक वे से होगा। वेरी गुड, डेटा विल बी सिस्टमैटिक। अगेन रिपीटेड डेटा होगा सर। रिपीटेड डेटा होगा, ओके। अगेन एक्सेल में सर चाहिए वो डेटा वापस हम मतलब इजीली निकाल सकते हैं। ओके, गुड। Easy to retrieve. इजीली रिट्रीव, ओके ओके। We can हाँ बोलिए। we can We update also. या वी कैन अपडेट ऑल्सो, गुड। देखो एक्सेल में जब भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है, वी आर मेकिंग एक्सेल एज टेबल्स, राइट, वी आर मेकिंग एक्सेल एज टेबल्स। तो टेबल्स में क्या होता है जनरली, हाउ यू विल डिफाइन द टेबल, इट विल हैविंग सम रो एंड कॉलम्स, करेक्ट। तो ये रो और कॉलम का जब कंसेप्ट आता है, दैट टाइम्स वी विल फील वेरी कंफर्टेबल टू रिट्रीव द डेटा ऑल्सो, है ना। आपको अगर कुछ डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 कस्टमर्स एंड फॉर 10 कस्टमर्स देर आर 10 फील्ड्स, दैट मीन्स 10 रोज होगा फॉर इंडिविजुअल कस्टमर एंड 10 कॉलम्स जहाँ पे उसका आईडी होगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वॉट एवर द फील्ड यू वांट टू सेव। इमेजिन कि आपने 10 कॉलम में सेव किए। नाउ इफ यू वांट टू रिट्रीव एनी पर्टिकुलर डेटा, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द सेल डेटा। हम इंडिविजुअल जो एक यूनिट होता है एक्सेल शीट में, उसको सेल कहते हैं। दैट मीन्स इन वन रो देर आर इनफाइनाइट सेल एंड इन वन कॉलम आल्सो देर आर इनफाइनाइट सेल्स। सेल्स मतलब छोटा यूनिट होता है, द स्क्वायर इन विच यू आर द स्क्वायर और रेक्टेंगल इन विच यू आर ट्राइंग टू सेव योर डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, कैरेक्टर्स और समथिंग, तो वो इंडिविजुअल सेल होता है। तो यहाँ पे इजीनेस क्या हो जाता है कि लार्ज डेटा आप स्टोर कर पाते हो एक्सेल शीट में इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल, और उसका इजीली क्या हो सकता है, आप रिट्रीव कर सकते हो। यू कैन रिट्रीव द डेटा वेन एवर यू वांट, ओके ओके। सो इट बिकम्स लाइक DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब आया होगा तब क्या होगा कि जितने भी आपके डेटा होंगे, अलग अलग डेटा, दैट वी आर ट्राइंग टू सेव इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्सेल फाइल, ओके, दैट सिंपली वी कैन से इन टर्म्स ऑफ टेबल्स। अब यहाँ पे जैसे वर्ड में हम क्या करेंगे,
लाइक थ्रू पैराग्राफ वी विल ट्राई टू सेव, और सिंगल एक लाइन में हम डेटा लिखते जाएंगे, जैसे कि नेम, उसके बाद होगा जैसे मान लीजिए रोल नंबर, देन मार्क्स, लाइक दिस इज द डेटा मेंटेनेंस फॉर द स्टूडेंट, राइट। बट वन बाय वन अगर वर्ड में सेव करोगे तो उसका रिट्रीवल इजी नहीं होगा। you have to every time you have to select all, control find, then you have to find the specific values through that word file, है ना। इमेज में तो डिफिकल्ट हो सकता है आपको ट्रेस करना, बिकॉज यू हैव टू ओपन द नंबर ऑफ इमेजेस टू सी द डेटा। देन दिस एक्सेल फाइल इज लाइक यूज टू सेव मल्टीपल डेटा, जितना भी मैक्सिमम डेटा आप सेव कर सकते हो, दैट वी आर ट्राइंग टू सेव इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, so it becomes as a database management system. Okay, now again under database there are number of components. Okay, there are number of components, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, that is DBMS. then again what is happening, अब DBMS के साथ भी एक disadvantage है। can you tell me what is the disadvantage of DBMS also, or any guess? अब तो हम सेव कर रहे हैं डेटा इन एक्सेल फाइल्स, तो अब इसके साथ डिसएडवांटेज क्या होगा, और व्हाट इज डिफिकल्टी यू आर फेसिंग? सर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ओके। increasing size. Okay, increasing size, okay. Okay, again anything? Storage capacity maybe. Okay, storage capacity, again Data redundancy. okay, yeah, data redundancy, again anything you want to add? Okay, listen, like what is the disadvantage, मान लीजिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, अब एक टेबल 1 बना है, टेबल 1, ओके, और मैंने जब सोचा था कि मैं DBMS से डेटा स्टोर करूंगा तो आई प्रिपेयर्ड 1 एक्स्ट्रा शीट, ओके, 1 टेबल। इन दैट टेबल मैंने क्या किया था, जितने भी यूजर्स है, यूजर्स का सब डेटा, यूजर्स डेटा इन टर्म्स ऑफ ऑल, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, राइट, एड्रेस, like username or password और contact, like address में भी दोनों एड्रेस लिखेंगे हमने, correspondence permanent address, again some account number होगा बैंक का। okay, again for example if even I want to maintain their balance, मान लीजिए मुझे डेटा सब स्टोर करना है for a particular application, तो मैंने क्या किया कि टेबल 1 में इतना पूरा डेटा स्टोर किया। ओके, नाउ व्हेनेवर आई वांट टू यूज दैट डेटा फॉर एनीथिंग ऑफ माय ऑपरेशन, तो मान लीजिए कि ये डेटा कहाँ पे यूज हो रहा है, एग्जैक्टली जब यूजर लॉगिन करना चाहेगा, राइट, व्हेनेवर यूजर ट्राई टू लॉगिन। अब बताइए, जब आप लॉगिन करते हो तो सिस्टम से आपके कौन सा डेटा वेरीफाई होना चाहिए? यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इवन वी आर नॉट वरीड अबाउट ईमेल, बिकॉज यूजर नेम और पासवर्ड एक ईमेल से ही अलाइन होते हैं, राइट। यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होते हैं, ईमेल से ही अलाइन होते हैं ना। हमने अगर मान लीजिए रजिस्टर किया होगा तो वी जस्ट नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू यूज दैट एप्लीकेशन। तो जब भी मैं कोई भी यूजर एप्लीकेशन में जाने के लिए क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो ही विल ट्राई टू पुट द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मुझे बताइए, अगर मुझे 2 डेटा वेरीफाई करना है बट स्टिल आई एम अप्रोचिंग द सेम टेबल विच इंक्लूड मल्टीपल डेटा, लाइक ऑल डेटा ऑफ द यूजर, सो वहां पे क्या होगा, यू विल फील कि सिस्टम एक तो स्लो हो जाएगी, बिकॉज सिस्टम क्या करेगी, ये टेबल में, कंप्लीट टेबल में जाके, इफ देर आर, मान लीजिए इफ देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स, ओके, और ये पासवर्ड और आपका यूजर नेम ये 99th कॉलम में है, सो व्हाट विल डू, लाइक सिस्टम विल गो कॉलम बाय कॉलम एंड विल ट्राई टू फेच द डेटा, रिक्वायर्ड डेटा थ्रू ऑल द टेबल्स। अब यहाँ पे क्या होता है
कि यू आर गेटिंग द ऑल डेटा इन वन टेबल, और जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको डील कहाँ से करना पड़ेगा, फ्रॉम द स्क्रैच, है ना। वो डायरेक्टली इस फील्ड पे नहीं जा पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली अपने टेबल की वैल्यू दी होती है। अगेन फ्रॉम द टेबल टू गो टू द मल्टीपल व्हाट वी कैन से चॉइस, वहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम कंज्यूम होगा। इवन हमने देखा था कि जैसे एपीआई में टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, राइट। वी आर ऑल्सो सीइंग द टाइम इन माइक्रो सेकंड्स, कि हमने रिक्वेस्ट दी है सर्वर को और वहां से रिस्पॉन्स आने में कितना समय लगता है, राइट। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी टेस्टिंग, ओके। इसको हम अगर नॉन फंक्शनल में देखेंगे तो इट्स कम्स अंडर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। और सिंपल एपीआई टेस्टिंग में हमने क्या देखा था कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू गिव द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है कि वी आर जस्ट हैविंग द डेटा इन टेबल्स, बट उस डेटा को हम इंटरेक्टिव नहीं बना सकते। इंटरेक्टिव मतलब मान लीजिए अगर इसी केस में मैं क्या करता कि एक टेबल में बस मैं यूजर नेम और पासवर्ड रखता विथ अ प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन लाइक नेम और आधार नंबर, एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ मैं उनको बस अलाइन करता यूजर नेम और पासवर्ड से, ताकि रिपीटेशन ना हो। इवन ईमेल भी रिपीट हो सकता है अगर डेटा दो हो तो, ओके। लाइक वी कैन क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड एंड वी कैन ट्राई टू क्रिएट न्यू पासवर्ड, तो उस केस में भी कुछ इशू हो सकता है। तो मान लीजिए दैट इज द लेटर पार्ट, बट सिंपल मुझे क्या करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड को किसी यूनिक फील्ड से अलाइन करना है। तो वो यूनिक फील्ड में मानता हूँ आधार नंबर या ईमेल आईडी, वॉट एवर दैट शुड बी यूनिक, वो मैं एक टेबल में सेव करता हूँ। नेक्स्ट टेबल में मैं रिमेनिंग डेटा, मान लीजिए कि एड्रेस चाहिए मुझे, तो मैंने एड्रेस की भी दो टाइप बनाए, करस्पॉन्डेंस, परमानेंट, उसको मैंने किसी और टेबल में सेव कर दिया। Now when I want to retrieve the data regarding username and password, तो वो पर्टिकुलर टेबल में जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी डेटा कम होना चाहिए, राइट। सो इट विल बी इजी टू रिट्रीव द डेटा, इट विल बी वेरी इजी टू रिट्रीव द डेटा। वहाँ पे सिस्टम ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेगा टू गिव द रिस्पॉन्स, राइट। सो डीबीएमएस में क्या है कि नाउ वी आर सेविंग द फाइल इन एक्सेल्स और इन टेबल्स, बट वी कैन नॉट मेक इट सेट इंटरेक्टिव, मतलब दो टेबल एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट मेक इट एज अ ऑपरेशनेबल बिटवीन टू डिफरेंट फाइल्स। दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ RDBMS, okay, RDBMS, that is what relational, डायरेक्ट लिखता हूं मैं DBMS, okay, that is relational database management system. Now what will happen here? Now we can make or create any operation between two files or two databases, है ना। अगर दो डिफरेंट डेटाबेस होंगे हमारे पास, तो हम उनसे इंटरेक्टिव कुछ भी डेटा फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, ओके। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, कि अलग अलग टेबल बनाए हमने और उस टेबल से क्या किया, वी आर ट्राइंग टू डू द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स और डेटाबेस। अब डेटाबेस में जो कंपोनेंट है मैंने वही कहा था, उसमें टेबल इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, टेबल इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। दैट कम्स अंडर द RDBMS. So this is what simply the concept why we are nowadays following the RDBMS, okay. Or maximum if we want to test the database, we will do in this RDBMS only as a tester, okay. Again for database, again there are many roles, like कि database designer होता है और database कोई develop भी करता है, right, फ्रॉम स्क्रैच। कि जैसे कुछ हम जैसे कहा था ना हमने कि डेवलपमेंट फेज होता है, तो डेवलपमेंट फेज में वो सबसे पहले क्या करेंगे, दे विल थिंक अबाउट द डेटाबेस डेवलपमेंट। आफ्टर द डेटाबेस डेवलपमेंट दे विल क्रिएट द APIs, दैट इज कॉल्ड एज API डेवलपमेंट। और उसके बाद एट फाइनल दे विल ट्राई टू मेक इट्स अ UI, मतलब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उससे वो क्या करेंगे, यूजर इंटरफेस बनाएंगे, राइट। सो डेटाबेस डेवलपर भी यूज करेंगे जस्ट टू डेवलप द डेटाबेस, or some of the concept from the RDBMS they will use to create the data, or we can say database design और database development के लिए। जैसे कि database development टर्म आती है, that means we have to test also, जो भी चीज डेवलप होती है जो टेस्ट करते हैं that is called as a testing, right. so GUI अगर डेवलप हुआ है तो हमने फंक्शनल टेस्टिंग किया उसका थ्रू वेब पेज, थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वॉट एवर इट मे बी, राइट। अगर API डेवलप किए उन्होंने तो हमने एंड पॉइंट उनके वैलिडेट किए
थ्रू एनी टूल, राइट, थ्रू मैनुअल, उसको कहते हैं, तो हम वो पोस्टमैन यूज करके किया, राइट। वही उन्होंने अगर डेटाबेस भी डिजाइन किया, डेवलप किया, तो वी हैव टू चेक कि वो करेक्ट डेटा फेच हो रहा है कि नहीं, और लाइक व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग ऑन द सिस्टम, जस्ट गिव मिनट। ओके, सो व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग ऑन सिस्टम, तब क्या होता है एग्जैक्टली, वी आर गेटिंग द डेटा, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट विजुअल लुक। जैसे कि हम कभी भी स्क्रीन पे कुछ क्लिक करते हैं, तो बैक एंड में मैंने कहा था कि एपीआई कॉल होते हैं ना, मतलब समथिंग फ्रॉम द क्लाइंट एज अ रिक्वेस्ट, इट विल गो टू एपीआई, अगेन फ्रॉम एपीआई इट विल गो टू सर्वर। तो ये बीच में क्या होता है, एपीआई कॉल होते हैं, और एपीआई एग्जैक्टली क्या करते हैं, ट्रिगर डेटाबेस से ऐसे कुछ कॉल ट्रिगर करते हैं जो हमको रिक्वायर्ड डेटा प्रेजेंट करते हैं थ्रू सर्वर ऑन यूआई। तो जैसे हमने एपीआई क्यों टेस्ट किए थे, बिकॉज हम जो भी क्लिक ऑपरेशन या जो भी ऑपरेशन यूआई पे करते हैं, तो उसका एग्जैक्टली एंड पॉइंट है या एपीआई वो सही से कॉल होता है कि नहीं। सही से कॉल होना मतलब इट इज गोइंग टू ऑपरेट और नॉट। तो सिमिलरली एपीआई भी कहाँ से तो अभी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डेटाबेस। मैंने आपको कहा था, फॉर एग्जाम्पल, what are the three layers there? What is the first layer? What is the first layer which we are interacting with? Present layer. App layer, or we can say application layer, और उसको कहते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, और उसको कहते हैं GUI, सिंपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हमको स्क्रीन पे कुछ एप्लीकेशन का UI दिखता है। What is the middle layer? API. business layer, business layer, बिजनेस लेयर, ओके, जहाँ पे क्या होगा, बिजनेस लॉजिक प्रेजेंट होगा, राइट। बिजनेस लेयर जहाँ पे क्या होता है, बिजनेस लॉजिक प्रेजेंट होता है, राइट। एंड व्हाट इज द लास्ट वन लेयर? database layer, डीबी लेयर, राइट। तो देखो ये तीन चीज डेवलप होने हैं ना। ये लेयर है मतलब क्या कि पहले डीबी लेयर डेवलप होगा, लाइक फ्रॉम द डीबी डेवलपमेंट टीम, देन एपीआई जैसे कि वो एंड पॉइंट देंगे आपको, तो वो भी कहीं तो डेवलप करेंगे, एंड देन एट लास्ट बाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द GUI। तो देखो हमने ये तो वेरीफाई कर लिया सबसे पहले कि एप्लीकेशन UI के बेस पे सही से काम कर रहा है कि नहीं, राइट, बाय क्लिकिंग ऑन डिफरेंट आइकॉन्स, क्लिकिंग ऑन बटन्स, राइट, क्लिकिंग ऑन ड्रॉप डाउन, लाइक कुछ फॉर्म होगा तो फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन करेक्टली ले रहा है कि नहीं, दैट वी आर डूइंग ऑन GUI टेस्टिंग, राइट, द फंक्शनल टेस्टिंग सिंपली। इफ वहां से क्या हो रहा था एग्जैक्टली, एज ए यहाँ से यूजर कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड दैट रिक्वेस्ट फर्स्ट इट विल गो टू द मिडल लेयर और बिजनेस लेयर। तो बिजनेस लेयर में जो रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो रिक्वेस्ट और फॉरवर्ड कहाँ पे होगी, थर्ड लेयर, दैट इज डीबी लेयर। देन फ्रॉम डीबी लेयर कुछ रिक्वायर्ड डेटा फेच करने के बाद वो कहाँ पे आ रहा था, अगेन टू एपीआई। अब एपीआई का रिस्पॉन्स आपने देखा है, जब हमने एंड पॉइंट पे क्लिक किया तो वो रिस्पॉन्स कैसे आता है, जस्ट लाइक अ पैराग्राफ एंड लाइक ऑल लेंथी रिस्पॉन्स। दैट रिस्पॉन्स इज नॉट इजीली अंडरस्टैंड टू द यूजर, तो उसको अगेन GUI में कन्वर्ट करके कहाँ पे प्ले होता है, पब्लिश एग्जैक्टली ऑन द ब्राउजर और वॉट एवर द क्लाइंट वी आर यूजिंग, है ना, मोबाइल ब्राउजर जो भी होगा। तो यहाँ पे जो कॉल एग्जैक्टली एपीआई थ्रू डीबी के लिए जा रहा था, दैट लाइक वी आर ट्राइंग टू डू द टेस्टिंग कि डेटाबेस में हम जो भी रिक्वेस्ट देते हैं, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आता है, हाउ इट इज कमिंग, लाइक वो रिस्पॉन्स किस बेस पे होता है, शॉर्ट और फिल्टर, वो हम देखते हैं एग्जैक्टली डेटाबेस टेस्टिंग। अगेन सिंपली डेटाबेस कहा तो फिर वहां पे आएगा कि डेटाबेस स्टोर होना चाहिए। सो डेटाबेस स्टोर की ये मेथड हमने देखे, दैट इज व्हाट सिंपली द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS एंड RDBMS। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग? नो डाउट? sir. चल, सर ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में भी एक्सेल में डेटा सेव होता है, बट वो लोकल में, DBMS में भी। लोकल में हो रहा है, लोकल में, लाइक वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंटरनेट। आपके लोकल सिस्टम में कितने भी एक्सेल फाइल करोगे आप,
तो उसको डेटा फेच करने में दूसरे यूजर को दिक्कत आएगी ना। जी। है ना। लोकल में हम सेम करें, एफएमएस क्या होता है कि लोकल पहले इंडिविजुअल अपन लोकल में सेव करेंगे, जैसे कि हमने देखा था ना वन टियर एप्लीकेशन, तो उसमें क्या हो रहा था, लाइक क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर प्रेजेंट इन सेम सिस्टम, तब वो इजी होता है। बट मान लीजिए कि आपकी लोकल सिस्टम में कुछ फाइल है और वो किसी और सर्वर से आपको फेच करने, दैट टाइम यू विल फेस प्रॉब्लम कि वो डेटा इजीली रिट्रीव नहीं होगा आपसे। तो डीबीएमएस में हम मतलब ऑनलाइन फाइल सेव करते हैं क्या एक्सेल पे? हाँ, अब सर्वर वही कंसेप्ट आएगा ना। अभी आपको क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट पता है ना, सेम एज एपीआई, सेम इट विल कम फॉर डेटाबेस आल्सो। ओके, अभी मैं पढ़ाऊंगा वो सेम हाउ इट बिकम्स इजी टू गेट द डेटा। डेटा मतलब इंटरनेट पे जैसे सर्च करके डेटा नहीं मिलेगा। ओके, आई विल टेल यू हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस और वो सब सिस्टम कैसे होती है। ओके ठीक है सर। ओके, नाउ देखिए, so before DBMS and RDBMS we are trying to store the data in terms of file, जिसको हमने क्या किया था, FMS, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सो लाइक एक्सेल, वर्ड फाइल, नोटपैड, मल्टीपल डेटा हम सेव कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, हम डेटा स्टोर कर रहे हैं बट वी कैन नॉट परफॉर्म दी ऑपरेशंस एंड वी कैन नॉट मैनेज इट प्रॉपरली। अब ऑपरेशन क्यों लगते हैं, तो सिंपली देखो, हम डेटा बस सेव करके स्टैटिक नहीं रख सकते उसको, राइट, वी हैव टू प्रोसेस इट। जैसे कि आज डेली में जितना भी डेटा कुछ सिस्टम से या एप्लीकेशन से प्रोसेस होता है, सॉरी क्रिएट होता है, तो उसको आफ्टर सम टाइम उस कंपनी को प्रोसेस करके उसको यूटिलाइज करना पड़ता है ना। सिंपली आज भी अगर आप पॉलिसी बाजार पे जाओगे और सिंपली आप आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करोगे उसमें, बिकॉज फर्स्ट इट विल आस्क टू गिव योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, है ना, टू सर्व यू बेटर। ऐसा बोल के वो क्या करेंगे, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल लेंगे। डेफिनेटली विद इन 1 or 2 days और इंस्टेंटली यू विल गेट एन कॉल। तो ये क्यों होता है, बिकॉज उन्होंने डेटा तो स्टोर कर लिया बट उस पर कुछ ऑपरेशन किए। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन वाइज उनको पुणे का डेटा मिला है, तो डेफिनेटली वो पुणे का डेटा कहीं तो सॉर्ट होगा और एक पुणे की टीम होगी हु विल ट्राई टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर थ्रू देयर कॉल सेंटर्स, और जो भी होगा वहां पे वो तुरंत फेच की जाएगी। दैट मीन्स बस डेटा स्टोर करना ये आज एम नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में। अगेन दे वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, तभी उस डेटा की वैल्यू होगी। अदरवाइज कितना भी ह्यूज डेटा आपके पास आने दो, इट विल बिकम्स लाइक वेस्टेज ऑफ लाइक टाइम और मनी, बिकॉज इफ यू कैन नॉट क्रिएट द आउटपुट फ्रॉम द डेटाबेस तो उसका कुछ यूज नहीं होता। सो एम क्या होगा लास्टली हमारा, कि डेटा स्टोर तो करना है ही हमको और उस पर कुछ ऑपरेशन करने हैं। सो जो ये एफएमएस में पॉसिबल नहीं था। ओके, देन लेटर वी हैव सीन दैट डीबीएमएस। तो इसमें क्या हो रहा है कि वी आर ट्राइंग टू सेव द डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स मींस अगेन इट विल बी द रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम होगा तो वहां से डेटा रिट्रीवल एज कंपेयर टू डिफरेंट फाइल्स इट बिकम्स इजी। मान लीजिए एक सेम डेटा अपने वर्ड फाइल में रखा है और एक सेम डेटा अपने एक्सेल शीट में रखा है, सो इट इज वेरी इजी टू फेच द डेटा, ओके, थ्रू दैट एक्सेल फाइल। But again, the RDBMS comes into picture because here the different database will communicate with each other. अब ये database का communication कैसे होता है वही मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके, relational database, that means different database will communicate with each other like multiple tables. Simple, मान लीजिए now for easiness multiple tables and we can establish the relation between them. Relation मतलब simply मुझे एक टेबल से दूसरे टेबल में कुछ डेटा कंपेयर करना है टू गेट सम पर्टिकुलर डेटा। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल में बस स्टूडेंट के रोल नंबर है, एक में बस मार्क है, एक में अगेन समथिंग अदर डिफरेंस है, अदर डेफिनेशन या फिर डिटेल्स है। तो उनको मुझे कुछ रिलेशन बेस करना है कि मान लीजिए एक रोल नंबर के स्टूडेंट का सबसे टॉप मार्क्स किस में है, तो मुझे अल्टीमेटली 2 टेबल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दैट वी आर डूइंग इन दिस RDBMS। ओके, now here comes the main point. Now this RDBMS is handled by the software. This RDBMS is handled by the software like Oracle, MySQL Server, DB2, right? Or there are different what we can say softwares. अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं वो देखना पड़ेगा। That means simple database, right? Relationship between the different database.
अब ये डेटाबेस कैसे काम कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा हमको. ओके 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 सो वी आर गोइंग टू सी द डेटाबेस. अब डेटाबेस है तो इसमें अगेन दो कंपोनेंट होंगे. कैन एनीवन नो व्हाट इज द टू कंपोनेंट्स फ्रॉम डेटाबेस? अगर मैं उसको मान लूँ सिंपल एज एपीआई. एपीआई में कौन से कंपोनेंट थे? हमने सबसे स्टार्टिंग में दो क्या देखा था? एनीवन नोज? Client and server. Client and server. क्लाइंट एंड सर्वर. ओके तो क्लाइंट एंड सर्वर दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, है ना. तो सिंपली यहाँ पे वो तो कंसेप्ट आपको पता है कि क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट देगा और सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा. राइट. अगेन द थिंग इज ये डीबी को मैंने क्या कहा था? एक सिंपली सॉफ्टवेयर. इट्स सिंपल अ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट है. वन इज द क्लाइंट, वन इज द सर्वर. देखिए टीबी डेटाबेस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अलग अलग डेटाबेस है आजकल, है ना. अब उसमें भी क्लाइंट और सर्वर ये दो कंपोनेंट आएंगे. वी कैन फाइंड देयर आर टू कंपोनेंट्स एज अ क्लाइंट एंड वन कंपोनेंट एज अ सर्वर. सिंपली क्लाइंट का यूज क्या होगा? चलो क्लाइंट बाद में देखते हैं, सर्वर समझ लीजिए. सर्वर मीन क्या होगा? सर्वर में एग्जैक्टली डेटा स्टोर होगा. राइट. सर्वर में क्या होगा? एग्जैक्टली डेटा स्टोर होगा. मैंने कहा था कि सर्वर इट मे बी ऑन सेम मशीन और इट मे बी ऑन रिमोटली प्लेस्ड. सर्वर कहाँ पे होगा वो हमको पता नहीं हो सकता है. राइट. और वो लोकल सिस्टम में नहीं होगा. मान लीजिए हम कुछ सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो कंपल्सरी नहीं कि आपके लैपटॉप में वो सर्वर अवेलेबल हो. आप इंटरनेट कनेक्शन करोगे और थ्रू एनी ब्राउजर और एनी लाइक सर्च इंजन यू विल ट्राई टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर. हम कहते हैं ना कि सर्वर डाउन है. क्यों? बिकॉज वो लोकल वो जो रिमोट कनेक्शन पे था वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सर्वर इज डाउन. ओके दैट मीन डेटा स्टोरेज प्रॉपरली क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. सिंपल उसको कहते हैं. सो सर्वर क्या होगा? व्हाट सर्वर एग्जैक्टली? द डेटा स्टोरेज. यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होगा इन टर्म्स ऑफ मेजर कंपाउंड लाइक टेबल और एनीथिंग. ओके मैं बताऊंगा आपको कैसे स्टोर होता है. नाउ क्लाइंट. अब क्लाइंट को चाहिए था डेटा. नाउ क्लाइंट वांट्स डेटा. सो व्हाट ही विल डू? क्या करेगा क्लाइंट? Send a request. इट विल ट्राई टू सेंड द रिक्वेस्ट, है ना. क्लाइंट क्या करेगा? सेंड द. अभी रिक्वेस्ट कैसे सेंड करोगे आप? इफ यू वांट टू फाइंड एनी डेटा तो आप क्या कहोगे सर्वर को? आई वांट data for flag. Can you make this? In the form of query. Yeah, in the form of query. मतलब देखिए as normal people we cannot directly interact with database in our plain English. आप कितना भी उसको properly English में grammatical बताइए कि I want information about this or a particular thing from server, it will not get the data because ultimately both are software, है ना. And software will not understand the human English language or any local language. They will not understand, right? और यहाँ पे हम तो वो नहीं कर सकते वॉइस सर्च, बिकॉज वॉइस सर्च से क्या हो सकता है? एक लार्ज डेटाबेस का डेटा हैंडल नहीं हो सकता है. ओके और एग्जैक्टली वो जो वॉइस सर्च भी होगा तो दैट विल बी एट द क्लाइंट एंड एट लाइक इट इन इजी मैनर. कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए नहीं हो सकता है वो. ओके नाउ क्लाइंट want some data from the server, so उसको क्या करना पड़ेगा? He has to give the request and in return what will get? He will get the response. Response मतलब क्या होगा? Exactly data जो हमको डेटा चाहिए था. Right? अब ये रिक्वेस्ट हमको जब देनी होती है that we have to give in a proper syntax or in proper language, है ना. एक प्रॉपर लैंग्वेज में हमको क्या देना पड़ेगा? उसको सर्वर को बताना पड़ेगा कि आई वांट दिस डेटा एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज SQL. व्हाट इज SQL? Structured query language. या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड मीन्स उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होना चाहिए. इट शुड नॉट बी रैंडम, है ना.
आपको डेटा चाहिए मतलब आपको किसी भी तरीके से नहीं ले सकते. इट शुड हैव सम प्रॉपर पैटर्न. क्वेरी मतलब क्या होता है? यू नो द क्वेरी पैरामीटर और क्वेरी वर्ड वी हैव सीन इन एपीआई टेस्टिंग. क्वेरी मतलब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपका कुछ क्वेश्चन है, लाइक आई वांट डेटा फॉर दिस यूजर, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ यूजर नंबर 2, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट विथ हैविंग रोल नंबर 2, लाइक दिस. तो क्या है आपकी क्वेरी, एंड एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज. सो एक पर्टिकुलर सिंटैक्स में आपको रिक्वेस्ट देनी है सर्वर को, एंड देन ओनली सर्वर विल गिव यू द रिस्पॉन्स. ओके, देन ओनली सर्वर विल गिव यू द रिस्पॉन्स. So this is what the functioning of database. Now I told you the database is software. Database is what? The software. तो सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट बनेंगे. क्या बनेगा? एक क्लाइंट और एक सर्वर. देन अगेन दिस client also one of the software again, and this server is also one of the software. Sorry, the server is also one of the software. So that means अगर मुझे कुछ डेटाबेस इंस्टॉल करना है तो मुझे दो कंपोनेंट इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एक क्लाइंट कंपोनेंट और एक सर्वर कंपोनेंट. क्लाइंट कंपोनेंट क्या करेगा? मुझे एक यूआई देगा जहां पे मैं कुछ लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल, लाइक स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में मैं कुछ क्वेरी लिखूंगा, एंड आई विल ट्राई टू रन इट और आई विल क्लिक ऑन इट. सो क्या होगा? इट विल इंटरेक्ट विद डेटाबेस, मींस डेटा स्टोरेज, अदर सॉफ्टवेयर या सर्वर से इंटरेक्ट करेगा और वो डेटा फेच करके आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट करेगा. ओके, सो ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर इट इज लाइक व्हाट? दीज आर द सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर कौन से है? तो ओरेकल, MS SQL, okay, और DB2. These are what the software. Okay. अब ये सॉफ्टवेयर है तो इनके दो कंपोनेंट मैंने बताया आपको, दैट इज व्हाट? क्लाइंट एंड सर्वर. अगर आपको कुछ डेटाबेस इंस्टॉल करना होगा तो आपको ये दो कंपोनेंट इंस्टॉल करने पड़ते हैं, द क्लाइंट एंड सर्वर. सर्वर हो सकता है, इफ इट इज पॉसिबल इट विल बी ऑन योर लोकल, और इट इज नॉट देन वो कहीं तो रिमोटली प्लेस होगा. बट क्लाइंट सॉफ्टवेयर तो आपको आपके सिस्टम में मिलेगा, देन ओनली वी कैन गेट दी डेटा. जनरली ये दोनों एक सिस्टम पे नहीं होंगे, बिकॉज सर्वर में काफी लार्ज डेटा होगा, है ना, और क्लाइंट को काफी कम डेटा फेच करना होता है. सो अगर दोनों हम एक सिस्टम पे रखेंगे तो सिस्टम विल बिकम वेरी स्लो. सो दैट्स व्हाई सर्वर कहीं रिमोटली प्लेस होगा और उससे मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट होंगे, है ना, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, इफ दे आर कनेक्टिंग विद सर्वर. ओके, अब ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, इट अगेन ऑफ टू टाइप. इट्स अगेन ऑफ टू टाइप. वन होगा आपका GUI और एक होता है CLI. व्हाट इज GUI? फुल फॉर्म? Graphical user interface. Graphical user interface. And do you know what is CLI? Command line interface. Command line interface. देखो, what is the difference between these two? तो एक सॉफ्टवेयर ऐसे होगा जैसे कि मान लीजिए हमारा पोस्टमैन था, तो यू कैन सी द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ पोस्टमैन. आपको पता है कि यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलेक्शन रखा है, यहाँ पे वर्क स्पेस रखा है, आप इजिली यू कैन सी, राइट? सो दैट्स कम्स अंडर दी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब आपका अगर क्लाइंट सॉफ्टवेयर का कुछ यूजर इंटरफेस है, मतलब वो एक एप्लीकेशन की तरह है, जिसको आप ओपन करोगे और कुछ क्लिक कर सकते हो, कुछ टाइप कर सकते हो, दैट्स कम्स अंडर द GUI, graphical user interface. And one is what? Command line interface. Okay, you know, I think command prompt, right? This is your command prompt. So from there we can run the specific commands. तो यहाँ पे देखो syntactical error आपको नहीं बताएगा कुछ, it will just एक तो पास होगा या फेल होगा, successfully you can get it or you cannot get it. Okay? सो यहाँ पे क्या करते हैं हम? CLI में डिफरेंट कमांड देते हैं. सो जनरली CLI ये जो इंटरफेस है या ये जो मेथड है वो जनरली डेटाबेस जो मेन कोर टीम होती है वो यूज करते हैं. बट अगेन दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद सिंटैक्स, देन ओनली दे विल गेट द आउटपुट फ्रॉम द CLI. Otherwise, like for tester, we are not dealing with that much data and
डेटाबेस कंसेप्ट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल GUI यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिखेगा। लाइक हमने कुछ क्वेरी लिखी है, दैट मीन्स वी हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू दी सर्वर, और सर्वर से कुछ डेटा फेच करके हमको एक आउटपुट में वो डेटा दिखेगा इन टर्म्स ऑफ टेबल, कि हमने मांगा है कि स्टूडेंट का रोल नंबर एड्रेस क्या होना चाहिए था, वो हमने मांगा है और हमको आउटपुट में वो डेटा दिख रहा है। दैट्स कम्स अंडर दी आउटपुट। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई डाउट है? सर CLI फिर से एक बार बोलिए। CLI ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ओके, मान लीजिए, सो यहाँ से हम वो कमांड रन करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया था, गेट क्वेरी हमने रन की थी, किसके लिए? गेट ऑपरेशन, मतलब इन HTTPS API टेस्टिंग। तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैन्युअली। ओके, लाइक गेट जो भी होगा उसका सिंटैक्स होता है। इफ इट सिंटैक्स इज नॉट प्रॉपर, आपको यहाँ पे एरर आएगा। जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे एरर आता है, सी द गेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो हमको यहाँ पे क्या देने होते हैं, कमांड देने होते हैं, और कमांड दोगे तो उसके नीचे उसका आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे कुछ यूजर इंटरफेस नहीं है, सिंपली क्या है, एक ब्लैक स्क्रीन है, वहीं पे आपको कमांड देना है और वहीं पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं और वी आर ट्राइंग टू फेच दी डेटा। ओके, तो ये CLI कौन यूज करेगा? जनरली जो एक्चुअल कोर टीम होती है DB की, डेटाबेस की, दे विल ट्राई टू यूज दिस बिकॉज दे नो ऑल द सिंटैक्स प्रॉपरली। बट अगर हम डेटाबेस से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, है ना, या फिर हमको सिंटैक्टिकली करेक्ट चाहिए, तो हम यूज करते हैं GUI। ओके, so see in database simple it's what a storage of different types of data। database मतलब क्या होगा, सिंपल it's a storage। अब मैंने वही बताया आपको, the person what he can use the GUI, it will be related with it will be connected with the server, web server, और वेब सर्वर में ही क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है। मतलब हम क्या करेंगे, whenever we want anything as a user or as a person, we will go through GUI। GUI में हम क्या लिखेंगे, कुछ क्वेरी लिखेंगे, and that query will goes to the web server। okay, and that server will interact with again this main storage, और वहां से हमको क्या मिलेगा, कुछ डेटा मिलेगा। ओके, now what is SQL, structured query language। ओके, अब हमको क्या करना है, उस डेटा में मैनिपुलेट करना है। लाइक वी वांट टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, you all know the CRUD ऑपरेशन, राइट? तो सेम वो CRUD ऑपरेशन यहाँ भी होता है। ओके, सिंपल दिस ऑल 4 ऑपरेशंस आर अगेन द CRUD ऑपरेशंस। बट यहाँ पे हम इस समय क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इन टर्म्स ऑफ HTTPS रिक्वेस्ट, वी आर डूइंग इट इन द फॉर्म्स ऑफ डायरेक्टली विद द डेटाबेस, है ना। ये रिक्वेस्ट हम किसको दे रहे हैं, डायरेक्टली डेटाबेस को दे रहे हैं। लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट एनीथिंग फ्रॉम द डेटाबेस, है ना, नया डेटा आपको इंसर्ट करना है, लाइक पोस्ट, राइट, अपडेट मतलब वो आपका पुट, रिट्रीव मतलब हुआ गेट, और डिलीट मतलब डिलीट। सो अगेन दीज 4 रिक्वेस्ट वी कैन डू विद द डेटाबेस आल्सो। अब ये 4 रिक्वेस्ट देना है आपको, तो जैसे हमने API में देखा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर URL देना पड़ेगा, अगर पेलोड है तो पेलोड देना पड़ेगा, राइट, रिक्वेस्ट पेलोड। सिमिलरली यहाँ पे कुछ हमको पैटर्न यूज करने हैं, सिंपल कोड स्निपेट जिसको हम कहते हैं, इट्स सिंपली अ कोड, है ना, और इसको कुछ हाई कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इट्स अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो उस क्वेरी लैंग्वेज से हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, इस UI से, मतलब UI पे हम वो टाइप करेंगे सिंटैक्स, एंड इट विल इंटरेक्ट अकॉर्डिंग विद द डेटाबेस, और वो आपको देगा आपको आउटपुट। तो उस लैंग्वेज को या उस सिंटैक्स को कंप्लीट या उस कोड को हम कहते हैं SQL। ओके, अगेन आई टोल्ड द डेटाबेस हैविंग द 2 कंपोनेंट्स, वन इज द क्लाइंट एंड वन इज द सर्वर, है ना। सो कोई भी डेटाबेस होगा तो वो ये 2 उसके कंपोनेंट आने ही है, दैट इज सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द डेटा एंड टू गिव द रिस्पॉन्स एज पर द रिक्वेस्ट, और क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल एग्जीक्यूट द SQL कमांड। कमांड मतलब क्वेरी लैंग्वेज से वो क्या करेगा, कुछ कोड लिखेगा, and that code will be responsible to fetch the data or to perform the multiple operations। okay, that is what the SQL।
ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट फॉर दिस एसक्यूएल? नो। देखिए सर मतलब एज अ डेटाबेस टेस्टर जब जो मतलब जो यूजर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो डेटाबेस में वो सब चीजें परफॉर्म हो रही है कि नहीं, वो अपना काम है ना चेक करने का। हाँ, मतलब डेटाबेस से आपको, जैसे आप डेटाबेस टेस्टिंग काम करना चाहोगे तो आपको डेटाबेस का एक्सेस दिया जाएगा और आपको अगेन ऐसा यूआई भी दिया जाएगा, है ना। दे विल आस्क यू टू इंस्टॉल सम सॉफ्टवेयर, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट सॉफ्टवेयर दिया जाएगा और आपको सर्वर का भी सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, है ना। तो क्या करोगे आप? सिंपली आपको जब डेटाबेस टेस्ट करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर से आपकी क्वेरी लिखोगे और ट्राई करोगे कि सर्वर से वो रिक्वायर्ड डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज डेटाबेस टेस्टिंग, सिंपल। गॉट इट? जी सर। ओके, सो देखो, अब एसक्यूएल मैंने कहा कि ये क्वेरी लैंग्वेज है ना। तो इसमें भी और सब लैंग्वेज बनते हैं। सब लैंग्वेज मतलब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये सिंपली यहाँ पे बोलूंगा कि डेटा डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन इज व्हाट द स्टैंडर्ड। एक बार क्रिएट होती है तो डेफिनेटली वो बदलती नहीं है ना, इट इज डेफिनाइट। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे होते हैं कि दैट विल गिव यू द फिक्स रिजल्ट। लाइक क्रिएट मतलब आपको कुछ क्रिएट करना होगा डेटा, अल्टर मतलब चेंज करना होगा, ड्रॉप, डिलीट, ये जो है टर्म्स हम देखेंगे अब। दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन विच वी कैन डू अंडर दिस डीडीएल। मतलब आपको अगर ये ऑपरेशन करने हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी? दिस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, आई वांट टू मैनिपुलेट द डेटा, लाइक मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये ऑपरेशंस है। तो ये ऑपरेशंस किस लैंग्वेज के अंडर आएंगे? द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल जिसको हम कहते हैं। ओके, नाउ डेटा रिट्रीव करना है ना। इफ यू वांट टू डेटा रिट्रीव द डेटा और वी हैव टू गिव सम क्वेरी टू गेट द डेटा, जैसे कि सिलेक्ट होता है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ गेट वी आर यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। दैट कम्स अंडर द डीआरएल, डेटा रिट्रीवल, और डीक्यूएल मींस डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, नाउ देयर इज अ टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए, मैंने पहले कहा था कि डेटाबेस अगर एक डोमेन है तो उसमें रोल भी अलग अलग है। कुछ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कुछ डेटाबेस डेवलपर होते हैं, है ना। जैसे कि हम क्या करेंगे, डेटाबेस को टेस्ट करेंगे। तो हमको देखो टेस्ट करना है तो मुझे डेटा क्या करना नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम ज्यादा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी कहाँ से होगा? क्रिएट डेवलपर से होगा। ओके, फिर डेवलपर को क्या करना पड़ेगा कि अगर वो कमिट और रोल बैक, मतलब ये ट्रांजैक्शन होते हैं, दो टेबल के बीच में कुछ अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मैक्सिमम वो टेस्टर के द्वारा नहीं होते। दैट विल अगेन डूइंग बाय द डेटाबेस डेवलपर और डिजाइनर, है ना। और कुछ एडमिन लेवल के होते हैं कि मान लीजिए कि आपको कुछ डेटाबेस का कंट्रोल चाहिए होता है ना, एक्सेस चाहिए आपको। तो एज अ टेस्टर वो हम नहीं चेक करते कि हाउ वी आर गेटिंग द एक्सेस और नॉट। तो वो एक अलग टीम होती है। सो दे विल ट्राई टू यूज द लैंग्वेज डीसीएल। मतलब आपका रोल और डोमेन वाइज आपको हर लैंग्वेज यूजफुल नहीं है यहाँ पे। आपको जैसे कि टेस्टिंग करना है हमको, तो वी आर मैक्सिमली ट्राइंग विद डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स एंड this DRL also, because we want some query or we want some data to be fetched from the server, तो हम ये यूज करेंगे। But like commit, rollback, we are using this operations very less time, not daily अगर आपको टेस्टिंग करना है तो मैक्सिमम आपकी DML, DDL और DQL ये यूज करते हो। बट ये TCL और DCL ये लैंग्वेज है, वो कहाँ से यूज होंगे? आप अगर आप डेटाबेस एडमिन काम कर रहे होंगे या फिर डेटाबेस डिजाइनर काम कर रहे होंगे तब आपको आएगा। सो अगेन रोल वाइज उसने क्या किया है कि सब लैंग्वेज बनाई है एसक्यूएल में। ओके, सो इट्स जस्ट अ सब लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग ऑन द डेटाबेस। ओके, अब ये डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस और सर्वर है, ये बस पढ़ लीजिए, इसका इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, नोबडी विल आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड डेटाबेस। ओके, बिकॉज हमको डायरेक्टली क्या डीबी टेस्टिंग करना है। सो एग्जैक्टली वो डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक वी आर ब्लैक बॉक्स टेस्टर, राइट। वो कोड कैसे लिखा है डेवलपर ने वो हम नहीं चेक कर रहे। एटलीस्ट
वी आर चेकिंग कोड जो लिखा है जिस फंक्शनलिटी के लिए वो सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है कि नहीं, वो हमको चेक करना होता है, राइट? सो दैट मीन्स वी आर यूज टू चेक द एंड रिजल्ट्स, नॉट द मिडवे बिटवीन द लैंग्वेज और कोड, वो हम चेक नहीं करते, राइट? सो डेटाबेस भी अगर उसने डिजाइन किया तो उसने कुछ कोड लिखा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू लाइक डेवलपर कुछ डिजाइन करता है तो वो कोड लिखता है, लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट? तो वो कोड क्या लिखा है डेटाबेस के लिए वो भी हम चेक नहीं करेंगे। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि डेटाबेस से डेटा आ रहा है कि नहीं, दैट वी विल ट्राई टू गेट। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर अप टू दिस द डिफरेंट लैंग्वेजेस, what is client server, what is SQL, and like what is the database concept. Okay, any doubt सर in this? आपको बताने वाले थे ना एफएमसी और इसमें क्या डिफरेंस है सर? किसमें FMS और एफएम मतलब एफएमसी मतलब फाइल हमारी लोकल में रहती है बोले थे आपने पहले। हाँ, तो ये कंसेप्ट हुआ इसमें ना। server पे देखो आपके लोकल में है तो आपके पास क्लाइंट और सर्वर नाम का कंसेप्ट नहीं होगा ना। आपके अगर डी ड्राइव में कुछ फाइल होंगी तो वो सर्वर पे है कि नहीं है? नहीं तो आप तो कोई दूसरा पर्सन अगर क्लाइंट है तो उसको वो डेटा उस फेच कर पाएगा आपका? नहीं कर पाएगा। तो वो हुआ डिसएडवांटेज FMS का। और वही अगर मैं डीबी सिस्टम यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस सिस्टम, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो सर्वर पे रखा है और कोई भी क्लाइंट अगर उसको एक्सेस है तो वो यूज कर पाएगा उस डेटा को। जी सर। ओके, क्लाइंट और सर्वर कंसेप्ट जब आता है दैट मींस दे मे बी ऑन सेम मशीन और दे मे बी ऑन डिफरेंट मशीन, बट इनका काम ही है कि एक रिक्वेस्ट। बोलिए। सर्वर मतलब वो ब्राउजर पे हम जो भी सर्च करते हैं तो सर्वर से हमें डेटा मिलता है, तो वही है क्या सर? सर्वर मतलब वही बोल रहे हैं क्या सर आप? हाँ, सर्वर मतलब डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। मतलब हम वेब पे जो भी डेटा डालेंगे वो हुआ डेटाबेस में। वो डेटाबेस में होगा तभी तो आपको आएगा ना आपके ब्राउजर पे। यस सर। गूगल आपको रिजल्ट तभी देगा ना जब उसके सर्वर में डेटा होगा तो। सर तो एक्सेल शीट हमें कहाँ मिलती है सर सर्वर पे? अभी हम अगर सर्च कुछ करते हैं ब्राउजर आपने पे। सर्वर देखा है कभी? नहीं। तो कैसे पता कर सकते हो आपकी वहां पे एक्सेल शीट नहीं है? सर मतलब क्या है? रेगुलरली हम जब यूज करते हैं तो डेटा हमें सीधे मतलब नहीं, तो आपने सर्वर देखा क्या आपकी आंखों से? कैसा दिखता है, कहाँ पे होता है, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली देखा है अभी? नहीं। तो आप बस आपकी यूआई पे जो दिखेगा उसका आप रिजल्ट मानोगे ना। यस सर। सिंपल। आपको अगर एक्सेल शीट चाहिए तो आप एक्सेल डालो गूगल पे तो आपको एक्सेल शीट भी मिल जाएगी। दैट मीन्स कि एक्सेल भी कहीं तो है ना डेटा में स्टोर। यस सर। आप जो ढूंढोगे वो मिलेगा ना उसमें। तो सर्वर में नंबर ऑफ डेटा होगा इन टर्म्स ऑफ इमेज, फाइल, PDF जो भी है वो कहीं तो डेटाबेस में सेव है ना। ऑलवेज डेटा मतलब इट्स नॉट ऑलवेज एक्सेल शीट ओनली। ओके सर। ओके। सो आई विल शेयर दिस PDF विथ यू। एक बार बस देख लीजिए एंड फ्रॉम टुमारो लाइक आई विल ट्राई टू गिव दिस डिफरेंट कमांड्स। ओके, हाउ विल ट्राई टू क्रिएट द टेबल है ना, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। ओके, सो एनी डाउट? सर हाँ बोलिए। डेटा कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? अब देखिए आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू द ओरेकल, बट ओरेकल जब इंस्टॉल करते हो आप मतलब क्लाइंट और सर्वर तो यू आर फेसिंग मेनी इश्यूज। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द सेकंड ऑप्शन। देख रहा हूँ मैं, वो बताऊंगा मैं आपको। नो वरीज। ओके, ओके सर। आई विल टेक केयर कि आप इजीली क्वेरी लिख पाओ। दैट इज माय मोटो। ओके, ओके सर। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको अगर क्लाइंट सर्वर इंस्टॉल भी करना होगा और कुछ एरर आ रहा है तो आई विल मेक सम अल्टरनेट ऑप्शन आल्सो टू मेक द प्रैक्टिस ओके इजी। डोंट वरी। ओके सर। Okay, yeah, so we'll stop here. Okay.